آج کے دور میں انٹرنیٹ پر ہر طرف اگر آپ دیکھیں تو فیک نیوز، مس انفارمیشن اور ان سوشل میڈیا فارورڈز کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ مطلب ایسے ماحول میں کسی بھی انفارمیشن کو ویریفائی کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، خصوصاً جب آپ کے پاس گوگل یا کسی اے آئی فیکٹ چیکر کی مدد نہ ہو۔ لیکن ذرا سوچئے کہ 9th سینچری میں ایک عظیم اسکالر گزرے ہیں، امام ابو داؤد السجستانی، جنہوں نے ایگزیکٹلی یہی کام کیا۔ ہاں، اور وہ بھی بنا کسی ٹیکنالوجی کے۔ ایگزیکٹلی بنا کسی ٹیکنالوجی کے انہوں نے تقریباً 500,000 یعنی 5 لاکھ رپورٹس اور نریشنز جمع کیں اور ان میں سے 99% کو فلٹر آؤٹ کر دیا۔ آج کی اس گہری چھان بین میں ہم جس سورس مٹیریل کا تجزیہ کر رہے ہیں وہ انہی کی مرتب کردہ عظیم کتاب سنن ابو داؤد ہے۔ رائٹ۔ سننے والوں کے لیے ہمارا بنیادی مقصد آج یہ سمجھنا ہے کہ صدیوں پرانی ایک قانونی دستاویز، جسے اس دور کا ایک لیگل ٹول باکس بھی کہا جا سکتا ہے، وہ آج کے اس کمپلیکس دور میں کیوں اہمیت رکھتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس میں موجود پیچیدگیوں، اختلافات اور جدت پسندوں کی تنقید کو علمی دلائل سے کس طرح سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک، اور یہ ڈسکشن اس لیے بھی بہت اہم ہے چونکہ ہم کسی عام تاریخی ٹیکسٹ کی بات نہیں کر رہے۔ سنن ابو داؤد اسلام کی کتب الستہ میں شمار ہوتی ہے، یعنی وہ 6 کتابیں جنہیں سب سے زیادہ اوتھینٹک یا مستند مانا جاتا ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ بالکل، لیکن اس تجزیے میں ہم صرف اس کتاب کی تعریف نہیں کریں گے، ہم ان چھپتے ہوئے اور انکمفرٹیبل سوالات کا بھی جائزہ لیں گے جو آج کے دور میں ایتھیس، ایکس مسلمز اور سیکولر تحریکیں اٹھاتی ہیں۔ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان تقلیدی سوالات کے تحقیقی جوابات کیا ہیں، بنا کسی جذباتی بایس کے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ شروعات ہم اس اسٹیٹسٹک سے کریں جو واقعی مائنڈ بلوئنگ ہے۔ امام ابو داؤد نے اپنی زندگی میں 5 لاکھ احادیث جمع کی، لیکن جب انہوں نے اپنی کتاب کمپائل کی تو اس میں صرف 4800 احادیث کو جگہ دی۔ اگر اس کا حساب لگایا جائے تو یہ ان کے جمع کردہ مواد کا 1% سے بھی کم بنتا ہے۔ ایک انسان اتنی محنت سے ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے اور پھر 99% کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ آخر باقی احادیث گئیں کہاں، اور اتنی بڑی تعداد کو ڈسکارڈ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ میتھڈالوجی واقعی حیرت انگیز ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں امام بخاری اور امام ابو داؤد کے مقاصد کا فرق سمجھنا ہوگا۔ دونوں کا اپروچ بالکل الگ تھا۔ اچھا، اتنی انتہائی سخت تھیں کہ تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہوتا تو وہ ریجیکٹ کر دیتے۔ رائٹ۔ لیکن امام ابو داؤد کا مقصد تھوڑا پریکٹیکل تھا۔ وہ قانون دانوں یعنی فقہا اور جورسٹس کے لیے ایک عملی دستاویز یا ریفرنس بک مرتب کر رہے تھے۔ انہوں نے ان تمام احادیث کو چھان لیا جن کی سند میں کوئی بڑا جھول تھا، جو بناوٹی تھیں یا جو اسٹرکٹلی لیگل اور فقہی معاملات سے متعلق نہیں تھیں۔ جو احادیث انہوں نے منتخب کی وہ دراصل اس دور کے قانونی مسائل کا پریکٹیکل نچوڑ تھیں۔ ویٹ ایک منٹ، آئیے اس کو تھوڑا ان پیک کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ ایک لیگل ٹول باکس تھا قانون بنانے کے لیے۔ ہاں، لیکن اکثر ناقدین یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ امام ابو داؤد نے اس کتاب میں ضعیف یعنی کمزور احادیث کو کیوں شامل کیا؟ ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو ایک قانونی کتاب میں آپ ڈیلیبریٹلی ویک ایویڈنس کیوں شامل کریں گے؟ آج کے کسی ماڈرن کورٹ میں تو ویک ایویڈنس کی بنیاد پر کوئی جج فیصلہ نہیں دے گا، کیس ہی ڈسمس ہو جائے گا۔ تو پھر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ یہ بہت لاجیکل سوال ہے، لیکن اگر اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جائے تو اس کا جواب خود بخود سامنے آ جاتا ہے۔ یہاں ہمیں 9th سینچری کی ٹرمینالوجی کو سمجھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں ضعیف کا وہ مطلب بالکل نہیں تھا جو آج ہم سمجھتے ہیں۔ آج کل ضعیف سنتے ہی ذہن میں آتا ہے کہ بات جھوٹی یا فیبریکیٹڈ ہے۔ ہاں، بالکل یہی لگتا ہے۔ لیکن اس وقت احادیث کی پرائمری کیٹیگرائزیشن صرف 2 حصوں میں ہوتی تھی، صحیح اور ضعیف۔ جو حدیث صحیح کے ایبسولوٹ ٹاپ ٹیئر معیار پر پوری نہیں اترتی تھی، چاہے اس میں مائنر سا ڈیفیکٹ ہی کیوں نہ ہو، اسے براڈلی ضعیف کہہ دیا جاتا تھا۔ اس براڈ ضعیف کیٹیگری کے اندر وہ حدیث بھی آتی تھی جنہیں آج کے دور میں حسن یا قابل قبول کہا جاتا ہے۔ تو یعنی ان کا ویک ہونا اصل میں سلائٹلی امپرفیکٹ ہونا تھا، نہ کہ کمپلیٹلی فیک۔ ایگزیکٹلی۔
और इस हवाले से इमाम अबू दाऊद ने अहले मक्का को लिखे गए अपने एक खत, जिसे रसाला इला अहले मक्का कहा जाता है, में बहुत वाज़े तौर पर अपना तरीक़ाकार बयान किया था। उन्होंने स्पेसिफिकली बताया कि जहां कानूनी मसले पर उन्हें कोई 100% परफेक्ट सही हदीस नहीं मिली, वहां उन्होंने इस मामूली ज़ईफ़ हदीस को शामिल किया है। लेकिन इसकी लॉजिक क्या थी? अगर एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस नहीं है तो चुप क्यों नहीं रहे? इसकी लॉजिक बहुत अक्ली थी। उनका मानना था कि एक मामूली ज़ईफ़ हदीस जिसका सोर्स किसी न किसी तरह नबी की तरफ जाता हो, वो किसी भी आम इंसान या जुरिस्ट की ज़ाती लाए यानी राय से दर्जे बेहतर है। अच्छा, यानी ह्यूमन गेस वर्क से बेहतर है कि ट्रेडिशन को फॉलो किया जाए। बिल्कुल, वो एसेंशियली कह रहे थे कि ह्यूमन गेस वर्क से बेहतर है कि हम उस ट्रेडिशन को फॉलो करें जो थोड़ी सी वीक है लेकिन हिस्टोरिकल वेट रखती है। साथ ही ये उनकी इल्मी शफाफियत यानी ट्रांसपेरेंसी का बहुत बड़ा सबूत है। वो कैसे? उन्होंने वाजे किया था कि जिस हदीस में शदीद ज़ौफ या रियल कमज़ोरी होगी, वो उस पर एक्सप्लिसिटली कमेंट करके उसकी निशानदेही ज़रूर करेंगे। वो कुछ छुपा नहीं रहे थे, बल्कि आने वाले जूरिस्ट्स को फुल पिक्चर दे रहे थे कि देखो, इस लीगल इशू पर इससे बेहतर कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ये मेथोडोलॉजी तो वाकई ट्रांसपेरेंट लगती है। तो अगर उन्होंने डिलिबरेटली थोड़ी वीक अहादीस को एज अ लीगल कॉन्टेक्स्ट शामिल किया था, तो क्या इससे उन कड़वे सवालों का जवाब मिलता है जो आजकल इंटरनेट पर वायरल होते हैं? किस तरह के सवालात? ठीक है, आइए इसके मुख्तलिफ पहलुओं को खोलते हैं। आज के दौर में एक्स मुस्लिम्स, एथियस्ट्स और बहुत से सेक्युलर एकेडमिक्स इस किताब पर बहुत इंटेंस और कड़वी तनकीद करते हैं। उनका निशाना आमतौर पर औरतों के हुकूक, सजाएं जिन्हें हुदूद कहा जाता है, और मज़ाहिब की तब्दीली या इर्तिदाद पर होने वाली सजाए मौत जैसे टबू मौज़ूआत होते हैं। ये बताया जाता है कि ये टेक्स्ट इंसानी हुकूक के जदीद तस्वुरात से डायरेक्टली टकराती है। ये तनकीद बिल्कुल वेल डॉक्यूमेंटेड है और आज के डिस्कशन में इसका ऑब्जेक्टिव तज्जिया करना बहुत ज़रूरी है। चलिए ख़वातीन के हुकूक की मिसाल लेते हैं जो इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा डिस्कस होती है। एक हदीस अक्सर कोट की जाती है जिसमें जिक्र है कि शौहर से नहीं पूछा जाएगा कि उसने अपनी बीवी को क्यों मारा। हाँ, ये काफ़ी परेशान कुन स्टेटमेंट लगती है आज के दौर में। बज़ाहिर मॉडर्न सेंसिबिलिटीज़ के हिसाब से ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टेटमेंट है, लेकिन जब क्लासिकल और जदीद मुहक्किकीन इस हदीस की सनद यानी इसके रावियों की चेन का जायज़ा लेते हैं तो हकीकत एक बिल्कुल मुख्तलिफ एंगल से सामने आती है। यहाँ मैं चाहती हूँ कि हम इस सनद के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करें। क्या इसे हम उस बचपन के टेलीफोन गेम की तरह समझ सकते हैं जहाँ मैंने किसी के कान में कुछ कहा, उसने आगे पास किया और एंड तक पहुँचते पहुँचते मैसेज चेंज हो गया, और इन स्कॉलर्स का काम उस चेन के हर सिंगल पर्सन को वेरीफाई करना था? ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। सनद का मतलब यही चेन ऑफ ट्रांसमिशन है, और हदीस साइंसेज में उन्होंने इस टेलीफोन गेम के हर खिलाड़ी का पूरा बैकग्राउंड चेक किया। तो इस स्पेसिफिक वाइफ बीटिंग वाली हदीस की सनद में क्या मसला है? इमाम अल-ज़हबी और दीगर बड़े हदीस एक्सपर्ट्स ने बहुत पहले वाज़े कर दिया था कि इस हदीस की सनद में एक शख्स शामिल है जिसका नाम दाऊद इब्ने अब्दुल्ला अल-औदी है। अच्छा, यह शख्स हदीस की साइंस में एक ज़ईफ़ यानी अनरिलायबल रावी माना जाता है। उसकी मेमोरी या कैरेक्टर में मसाइल थे, इसलिए इस सिंगल चेन की बुनियाद पर इस स्टेटमेंट को कानूनी फैसले की बुनियाद नहीं बनाया जा सकता, खुसूसन उस वक्त जब कुरान के अंदर वाज़े तौर पर औरतों के साथ हुस्न सलूक का दर्स है और प्रैक्टिकली नबी की आम सुन्नत भी यही बताती है कि उन्होंने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया। तो यानी इल्मी तहकीक एविडेंस की स्ट्रेंथ पर चलती है। एग्जैक्टली यहाँ इल्मी तहकीक का कमाल ये है कि वो जज्बात को एक तरफ रखकर स्ट्रिक्टली मेथोडोलॉजी और एविडेंस की स्ट्रेंथ को देखती है। दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। लेकिन कुछ कंट्रोवर्सीज और भी डीप हैं। मिसाल के तौर पर इर्तिदाद यानी रिलीजन छोड़ने या अपोस्टेसी पर सजाए मौत की अहादीस, ये भी तो इसी किताब में मौजूद है। आजकल के ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क में जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ रिलीजन बुनियादी हुकूक माने जाते हैं, इन हदीस को एकेडमिक सर्कल्स में किस तरह एक्सप्लेन या कॉन्टेक्चुअलाइज किया जाता है? इर्तिदाद की अहादीस का जायजा लेने के लिए उस दौर का पॉलिटिकल और तारीखी कॉन्टेक्स्ट समझना लाजमी है।
क्लासिकल जूरिस्ट्स और आज के दौर के अहम मॉडर्न स्कॉलर्स इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि 9th सेंचुरी में मजहब की तब्दीली सिर्फ एक ज़ाती अकीदे या पर्सनल बिलीफ का मामला नहीं था। तो फिर ये कैसा मामला था? उस दौर में दीन और रियासत एसेंशियली एक ही चीज़ थी। तो ये सीधा सीधा सियासा अल शरइया यानी स्टेट लॉ और बगावत, जिसे हम ट्रीजन कहते हैं, उसका मामला था। लोग अपना ट्राइबल और रिलीजियस एलिजेंस तब्दील करके अक्सर पॉलिटिकल दुश्मन की फौज के साथ मिल जाते थे। यानी इसे अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो ये अपने ड्राइंग रूम में बैठकर ज़ाती तौर पर अपना अकीदा तब्दील करने का मामला नहीं था, बल्कि ये ऐसा था जैसे कोई सिटीजन वॉर टाइम में अपने मुल्क के खिलाफ दुश्मन स्टेट से जा मिले। इट वॉज मोर अबाउट ट्रीजन देन थियोलॉजी। एग्जैक्टली। उस वक्त सिटीजनशिप का मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं था। सिटीजनशिप आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी से जुड़ी हुई थी। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में इर्तदाद की सज़ा दरअसल रियासत के खिलाफ बगावत की सज़ा थी, ना कि स्ट्रिक्टली प्राइवेट बिलीफ्स की तब्दीली की। ये पॉइंट काफ़ी वाज़े करता है चीज़ों को। हाँ, आज के दौर में जबकि बगावत और ज़ाती अकीदा दो बिल्कुल अलग अलग स्फीयर्स बन चुके हैं, बहुत से जदीद मुहक्किकीन इस बात को हाईलाइट करते हैं कि कुरान का वाज़े फरमान है कि दीन में कोई ज़ब्र नहीं। इसलिए इन अहादीस को यूनिवर्सली हर दौर में ब्लाइंडली अप्लाई नहीं किया जा सकता बगैर उस पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को समझे। ये कॉन्टेक्स्ट देना वाकई ज़रूरी था। चलिए अब एक नए रुख की तरफ चलते हैं जो सीधा मॉडर्न रैशनैलिटी और एम्पिरिसिज्म से टकराता है। हाँ, बताएं। हम बात कर रहे हैं उन अहादीस की जो बज़ाहिर जदीद साइंस के खिलाफ लगती हैं। सुनन अबू दाऊद में ऐसी अहादीस हैं जैसे मक्खी के एक पर में बीमारी और दूसरे में शिफा होने का जिक्र, या काले कुत्तों को मारने का हुक्म, या बुरी नज़र यानी ईविल आई का कॉन्सेप्ट। आज का अक़लियत पसंद ज़हन जो डबल ब्लाइंड स्टडीज़ और लैब रिजल्ट्स पर चलता है, इन बातों को पढ़कर ठीक ठाक परेशान होता है। इससे एक अहम सवाल पैदा होता है और वो ये है कि मजहब और साइंस की बाउंड्रीज आखिर हैं क्या? क्या हर कदीम रिलीजियस टेक्स्ट को हम बायोलॉजी, फिजिक्स या मेडिसिन की टेक्स्ट बुक समझ सकते हैं? यहाँ 14वीं सदी के अजीम मुफक्कर और सोशियोलॉजिस्ट इब्न खल्दून का उसूल बहुत काम आता है। उन्होंने क्या कहा था इस बारे में? उन्होंने अपनी मशहूर किताब मुकद्दमा में बहुत पहले वाज़ेह कर दिया था कि तिब्बे नबवी यानी प्रोफेटिक मेडिसिन का ताल्लुक डिवाइन रेवलेशन या वही से नहीं था, बल्कि ये उस दौर के सकाफती और माहौलियाती कॉन्टेक्स्ट का हिस्सा थी। ये कोई लाजमी मजहबी कानून नहीं थे जिसे कयामत तक के लिए फिक्स कर दिया गया हो। तो आप कह रहे हैं कि मक्खी वाली हदीस हो या कोई और तिब्बी मशवरा, वो 7th सेंचुरी अरेबिया की एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशंस या लोकल रेमेडीज थीं। उन्हें रिलीजन का कोर पार्ट समझना ही कैटेगरी मिस्टेक है। और जहाँ तक बुरी नज़र या माफौकुल फितरत चीज़ों का ताल्लुक है, इस्लाम में इन्हें गैब यानी अनसीन के डोमेन में रखा जाता है। सही। साइंस की अपनी एक लिमिटेशन है, वो सिर्फ उन चीज़ों को माप सकती है जो फिजिकल और मटेरियल हों। लेकिन अगर हम मॉडर्न साइकोलॉजी की तरफ देखें तो आज साइकोसोमैटिक इफेक्ट्स का तस्वर बहुत आम है। हम जानते हैं कि एक इंसान की नेगेटिव एनर्जी, शदीद हसद या फोकस किसी दूसरे इंसान की ज़हनी या जिस्मानी हालत पर फिजिकल असरात डाल सकता है, स्ट्रेस और एंजाइटी के थ्रू। बिल्कुल, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं साइकोलॉजी में। तो बुरी नज़र का कॉन्सेप्ट जदीद अक़लियत से बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट नहीं है, बस इनका डोमेन फ़र्क है। एक प्योर फिजिकल साइंस का लेंस है और दूसरा मेटाफिजिकल और साइकोलॉजिकल लेंस। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्रिज है बिटवीन मॉडर्न साइकोलॉजी एंड एंशिएंट टेक्स्ट्स। अच्छा, वैसे एक और लफ्ज़ जो इस पूरी तहकीक में बार बार सामने आता है वो है इसराइलियात, यानी ज्यूइश और क्रिश्चियन रिवायत। हाँ, ये भी एक अहम पॉइंट है। अब कोई भी आम इंसान सोचेगा कि एक प्योर इस्लामिक लीगल टेक्स्ट में जिसका मकसद शरिया डिफाइन करना है, इन यहूदी और ईसाई रिवायत का क्या काम? क्या अबू दाऊद इन्हें कानून साजी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे? ये बहुत दिलचस्प पहलू है सुनन अबू दाऊद का। सबसे पहली बात तो ये समझनी ज़रूरी है कि इतनी बड़ी किताब में ऐसी रिवायत की तादाद आटे में नमक के बराबर है। शायद मुश्किल से 5 से 10 अहादीस, और इन्हें कभी भी किसी भी क्लासिकल स्कॉलर ने बुनियादी कानून साजी के लिए इस्तेमाल नहीं किया। तो फिर इनको शामिल ही क्यों किया गया? इनको स्पेस क्यों दी गई? इनका बुनियादी मकसद सिर्फ इखलाकी असबाक देना था, जिसे हम मोरल एनालॉजीज कहते हैं।
मिसाल के तौर पर इस किताब में एक हदीस में जिक्र है कि बनी इसराइल के एक शख्स को कब्र में इसलिए अजाब हुआ क्योंकि उसने पेशाब की छींटों से बचने के लिए सख्त इंतहाई कदम उठाते हुए अपनी जिल्द का एक हिस्सा काट लिया था। ओह, ये तो काफी एक्सट्रीम लगता है। अगर आप इसे सुपरफिशियली पढ़ें तो अजीब लगेगा, लेकिन यहाँ मकसद कोई नया हाइजीन लॉ बनाना नहीं है। यहाँ एसेंशियली एक कॉशन दी जा रही है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ। ये बताया जा रहा है कि इबादत में या पाकी के मामले में इंतहा पसंदी और ऑब्सेसिव बिहेवियर किस तरह खुद को नुकसान पहुंचाता है, और ऐसी रिवायत को भी सिर्फ उसी सूरत में एक्सेप्ट किया गया जब उनकी सनद किसी प्रोमिनेंट सहाबी से आई हो। आइए अब इस छानबीन के सबसे बुनियादी और शायद सबसे बड़े एतराज की तरफ आते हैं। नबी की वफात और इन किताबों के कंपाइल होने के दरमियान तकरीबन 200 साल का वक्फा यानी गैप है। अब मगरबी मुहक्किकीन जैसे इग्नायस गोल्डज़ीहर और जोसेफ शाख्ट ने इस पर बहुत बड़ी और स्ट्रक्चर्ड तनकीद की है। हाँ, ओरिएंटलिस्ट की ये तनकीद बहुत मशहूर है। उनका आर्ग्यूमेंट सिंपल है कि हमें तो पिछले हफ्ते की किसी डिनर पार्टी की कॉन्वर्सेशन सही से याद नहीं रहती, तो ये कैसे पॉसिबल है कि 200 साल तक हजारों कोट्स प्योरली सीना बसीना यानी ओरल ट्रेडिशन के जरिए एक्यूरेटली ट्रांसफर होते रहे। बिल्कुल, उनका ये मानना था। शायद का कहना था कि ये अहादीस असल में 9th सेंचुरी के अपने कानूनी और सियासी मसाइल हैं, जिन्हें इन स्कॉलर्स ने पीछे जाकर रेट्रोजेक्ट किया और उन पर फेक चेन्स लगाकर नबी के नाम से मंसूब कर दिया ताकि अथॉरिटी मिल सके। ये आर्ग्यूमेंट सुनने में बहुत लॉजिकल लगता है। इसका क्या जवाब है एकेडमिक सर्कल्स में? मगरिबी मुहक्किकीन की ये तनकीद बिल्कुल हवाई नहीं थी, और ये बहुत अरसे तक ग्लोबल एकेडमिक सर्कल्स में डोमिनेंट रही। वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में यही पढ़ाया जाता था। लेकिन फिर 20वीं सदी के आखिर में एम आज़मी और बाद में हारल्ड मुत्स्की जैसे स्कॉलर्स ने आकर इस थ्योरी को जड़ से हिला दिया। उनकी क्या रिसर्च थी इस पर? उनकी तहकीक ने फिजिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स और टेक्सचुअल एनालिसिस से ये साबित किया कि अहादीस का निज़ाम सिर्फ और सिर्फ ओरल ट्रेडिशन यानी सीना बा सीना नहीं चल रहा था। तो क्या उनके पास रिटन रिकॉर्ड्स थे पहले से? एग्जैक्टली। पहली सदी हिजरी में ही सहाबा और ताबीन ने इन रिपोर्ट्स को तहरीरी शक्ल में, जिन्हें रिटन सहीफे और मुसन्नफ़्स कहा जाता है, महफूज करना शुरू कर दिया था। मॉट्स्की ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया जिसे कॉमन लिंक मेथड कहते हैं। ये मेथड कैसे काम करता है? इमेजिन करें एक दरख्त की ब्रांचेस को जो अलग अलग जगहों पर फैली हुई हैं। जब आप इन तमाम ब्रांचेस यानी ट्रांसमिशन चेन्स को ट्रेस बैक करते हैं तो वो आकर एक सिंगल ट्रंक या कॉमन लिंक पे मिलती हैं। मॉट्स्की ने दिखाया कि ये कॉमन लिंक्स 9th सेंचुरी में नहीं बल्कि ठीक 1st और 2nd सेंचुरी में जाकर मिलते हैं। इसलिए 200 साल का जो फैब्रिकेशन विंडो यानी झूठी कहानियां घड़ने का वक्त शाख्त ने अज्यूम किया था, वो दरअसल एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये तो काफी क्लियर एविडेंस है, यानी रिटन टेक्स्ट बहुत पहले से सर्कुलेट हो रहे थे। बिल्कुल, रिटन टेक्स्ट पहले से मौजूद थे। इमाम अबू दाऊद और इमाम बुखारी ने उन्हें बस कैटेगराइज और फिल्टर किया था। ये तो एकेडमिक सर्कल्स और मॉडर्न स्कॉलरशिप की बात हो गई, लेकिन अगर हम इस्लाम के अपने अंदर मौजूद मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र यानी सेक्ट्स की बात करें तो उनका इस किताब के बारे में क्या नुक्ता नज़र है? क्योंकि इस्लाम मोनोलिथिक तो है नहीं। मिसाल के तौर पर शिया, मुताज़िला, इबादी या ज़ैदी स्कूल्स इस क्लासिकल सुन्नी टेक्स्ट को कैसे देखते हैं? ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि हर मकतबा फ़िक्र का अपना एक अलग एपिस्टेमोलॉजिकल फ्रेमवर्क और पैमाना है। अगर हम क्लासिकल शिया स्कॉलर्स की बात करें तो वो ब्रॉडली इस किताब को अपना बुनियादी कानूनी माखज़ या प्राइमरी सोर्स नहीं मानते। उनकी क्या टेक्निकल दलील है इसके पीछे? उनकी प्योरली टेक्निकल दलील ये है कि उनके नज़दीक अहादीस की अथॉरिटी सिर्फ उस वक्त कायम होती है जब उनकी सनद उनके आइमा यानी अहले बैत के ज़रिए आनी चाहिए। क्योंकि सुनन अबू दाऊद की चेन्स आमतौर पर इस मखसूस लीनिएज पर स्ट्रिक्टली डिपेंडेंट नहीं हैं, इसलिए वो इसे लीगल बेसिस नहीं बनाते। लेकिन इसके बावजूद हिस्टोरिकल और एकेडमिक लेवल पर वो इस टेक्स्ट का एहतराम करते हैं और उन अहादीस को एज अ सपोर्टिंग एविडेंस कबूल कर लेते हैं जो उनके अपने अकायद से तसादुम नहीं रखती। और मुताज़िला, वो तो हिस्टोरिकली अपने अक़लियत और प्योर रैशनैलिटी के लिए मशहूर थे। उनका अप्रोच क्या था इस किताब के साथ? मुंतज़िला का अप्रोच एक्सपेक्टेडली बिल्कुल अक़ली और रैशनल था। उनका प्रिंसिपल ये था कि अक़ल और वही दोनों अल्लाह की तरफ से हैं, इसलिए इनमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो सकती।
تو وہ ان تمام احادیث پر تنقید کرتے تھے جو ان کی عقلیت یا ان کے سمجھے ہوئے قرآنک پرنسپل سے ڈائریکٹلی کلیش کرتی تھیں۔ یعنی ان کا مین فلٹر ان کی عقلیت تھی۔ جی، خصوصاً احادیث یعنی وہ رپورٹس جو پیورلی ایک سنگل چین سے آئی ہوں۔ متزلہ کا ماننا تھا کہ ایک سنگل چین آف ٹرانسمیشن سرٹنٹی یا یقین پرووائیڈ نہیں کرتی۔ وہیں اگر آپ عبادی اور زیدی اسکالرز کو دیکھیں تو ان کا اپنا الگ اصول ہے۔ وہ سنن ابو داؤد کی صرف انہی حدیث کو سلیکٹیولی یوز کرتے ہیں جو ان کے اپنے پری اسٹیبلشڈ فقہی اصولوں پر پوری اترتی ہیں۔ تو اس ساری ویرائٹی کا ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ سنن ابو داؤد پر پورے اسلامک ہسٹری میں کبھی بھی بلائنڈ فیتھ نہیں رکھا گیا۔ لوگ نیچرلی اس کو کویسچن کرتے آئے ہیں الگ الگ اینگل سے۔ بالکل، یہ اس بات کا کلیئر ہسٹوریکل ثبوت ہے کہ اس ٹیکسٹ کو آؤٹ آف باؤنڈز یا ان ٹچبل نہیں سمجھا گیا۔ مسلم امہ خود، اس کے مختلف سیکٹس اور اسکالرز صدیوں سے اس کا انتہائی تنقیدی تجزیہ اور کراس ایگزامینیشن کرتے آ رہے ہیں۔ تو اس سب کا الٹیمیٹ کنکلوژن کیا نکلتا ہے؟ اتنے اعتراضات، اتنی صدیوں کی تنقید اور ایکس مسلم سے لے کر ماڈرن اکیڈیمکس تک کے اتنے کڑوے سوالات کے باوجود اس 9th سینچری کے قانونی مجموعے کی اہمیت آج بھی کیوں برقرار ہے؟ یہ ٹیکسٹ ابھی تک ریلیونٹ کیوں ہے؟ اس کا سب سے اہم مطلب یہ ہے کہ سنن ابو داؤد کوئی مردہ یا بند دستاویز نہیں ہے جسے گلاس کیس میں رکھ دیا گیا ہو۔ یہ ایک زندہ روایت یعنی لیونگ ٹریڈیشن ہے۔ 13ویں صدی میں امام النووی سے لے کر ہمارے آج کے دور کے ماڈرن اسکالرز تک ہر دور کے اسکالرز نے ان ٹیکسٹ پر مسلسل تحقیق، ری اسیسمنٹ اور فلٹرنگ کی ہے۔ یعنی پروسیس رکا نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اس کتاب کو اسٹرکٹلی آنکھیں بند کر کے ہر وقت ہر رول پر اپلائی کرنے کے بجائے اسے مقاصد شریعہ یعنی اسلامک لا کے براڈر آبجیکٹیوز اور علمی تنقید کے پیمانے پر رکھ کر ایفیکٹیولی پڑھا جاتا ہے۔ اس ٹیکسٹ کو ٹھیک طرح سمجھنے کے لیے عقلیت اور روایت دونوں کا ایک انتہائی ڈیلیکیٹ بیلنس ضروری ہے۔ بنا کانٹیکسٹ اور بنا کنٹمپرری ریشنل انالیسس کے آپ اسے سمجھ نہیں سکتے۔ یہی فلیکسیبلٹی وجہ ہے کہ 1000 سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود یہ آج بھی مرکزی اہمیت رکھتی ہے۔ واقعی ان کلاسیکل میتھڈالوجیز کی ڈیپتھ کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ اس تمام گفتگو کے بعد، اس سے پہلے کہ ہم اینڈ کریں، سننے والوں کے لیے ایک آخری پروووکیٹو اور ڈیپ تھاٹ چھوڑے جاتے ہیں۔ سوچئے کہ آج ہم ایک ایسی ہائپر کنیکٹڈ دنیا میں جی رہے ہیں جہاں الگورتھمز اور سوشل میڈیا ہمیں اپنی مرضی کی فیڈ دکھاتے ہیں۔ مس انفارمیشن کا اتنا اوورویلمنگ فلڈ ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اوریجنل سورس کیا ہے۔ بالکل، آج کل انفارمیشن کو ویریفائی کرنا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اگر امام ابو داؤد جیسا کوئی اسکالر آج اس ڈیجیٹل دور میں موجود ہوتا تو کیا آج کے ایڈوانسڈ اے آئی الگورتھمز اور سلیکن ویلی کے فیکٹ چیکنگ ٹولز ان کے اس 9th سینچری کے ہیومن ڈریون، ٹرانسپیرنٹ اور ریگرس میتھڈالوجی کا کسی بھی طرح مقابلہ کر سکتے ہیں، جہاں ہر راوی کا بیک گراؤنڈ کراس چیک کیا جاتا تھا؟ اور سب سے اہم بات، کیا ہم آج اپنی روزمرہ کی ڈیجیٹل انفارمیشن اور نیوز کو پرکھنے کے لیے صدیوں پرانے اس علمی اور تنقیدی تجزیے سے کوئی نیا، بہتر اور زیادہ شفاف فریم ورک سیکھ سکتے ہیں جو ہماری ٹھیک رہنمائی کر سکے؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔